Very good morning and very warm welcome to all the future managers of forthcoming era. My name is Bal Krishna and I'm your host for today's session. My job is to usher the interaction between you and our eminent speaker of the day. In the current situation of COVID-19 pandemic, one must keep himself fit and healthy. Once Thomas Carlyle said, "He who has health has the hope, and he who has hope has everything." So let's start our today's session with this positive note. It gives me immense pleasure to introduce our today's speaker, Mr. Rahul Kharbanda. Mr. Rahul Kharbanda is a health and nutrition expert. Mr. Kharbanda is a dynamic and achievement-oriented individual possessing more than 20 years of proven success in training and development of his clientele. He is specialized in one-on-one personal training and taking his clients to extreme cutting edge. He's an entrepreneur and educator and training the trainers for more than 15 years. He has been associated with many athletes and sportspersons, helping them to improve their conditioning and performance with elite artistic exercise training and nutrition coaching. As an entrepreneur and leader, he mentors business owners with his expert consultancy skills. His vision is to help people achieve their dreams with right guidance and direction. Ladies and gentlemen, let's hear from the man himself, Mr. Rahul Kharbanda. Over to you, Mr. Rahul. Hello, everyone. Good morning. I believe I am audible to all of you. Yes, Mr. Rahul. Great. Thank you, Mr. Balkrishnan, for a wonderful introduction and hosting. And thanks to the management and especially Mridul Nagpal, who invited me to take this session. I'm honored for that. And today is a very, very special day. A very special day. Reason? We all are into a lockdown, but still we are assembled in a digital platform to have something positive in note, to learn something new, and to create history. Because why I'm saying that this day can actually create history. The reason is what I will be delivering today is very important, very, very important. And I request each and every one of you to have a notebook just by the side and a pencil or a pen so that you can also take down some important notes which you can apply after this session, right? So let us start, and I would start with a joke. Let me start with a joke, right? So it all happened a few years back in a corporate office. A manager named Mridul and an assistant named Rahul and one of the other colleague named Balkrishnan, right? All went out for a lunch break and just roaming on the streets, Rahul hit a bottle, right? और उस बॉटल को हिट करते ही उसमें से एक जिनी निकला, जिनी, right? The genie came out. तो जिनी ने बोला कि you have actually freed me, आपने मुझे आजाद किया है. Each one of you can have one वरदान, कुछ भी आप मेरे से मांग सकते हैं, you know. So सबसे पहले बालकृष्ण की बारी आई. बालकृष्ण ने बोला, जिनी, I am actually fed up with the job. I want to go to Las Vegas and enjoy my life now. So Ginny said, Tathastu, you go.
और बालकृष्ण पहुंच जाते हैं लास वेगास। नाउ इज माय टर्न। मैं हूं असिस्टेंट, राइट, मृदुल का, द मैनेजर। तो वो असिस्टेंट जो है उसने क्या वरदान मांगा कि आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड, मुझे धरती पे स्वर्ग जो है वहां के दर्शन करने, आई वांट टू गो देयर एंड लिव माय कंप्लीट लाइफ विद माय फैमिली। तो जिन्हें कहा तथास्तु, आप जा सकते हैं। तो वहां से गायब हो जाता है। अब बारी आती है मैनेजर साहब की, मृदुल। सो हम यहाँ पे MBA प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं या ऑलरेडी इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, बट दैट इज द होल स्टोरी अबाउट इट, राइट। सो मृदुल का टाइम आया और मृदुल ने क्या वरदान मांगा, ही जस्ट स्क्रैच हिज हेड, और उनके दिमाग में आया कि यार मेरे 2 एम्प्लॉयज चले गए, अब मैं क्या करूंगा, बाहर जाऊंगा ऑफिस वापस तो मेरा बॉस जो है वो मुझे डांटेगा। तो उन्होंने वरदान मांगा, एक ही वरदान मांगना था, ही वुड हैव लव्ड एंड लिव्ड हिज ओन लाइफ, बट उन्होंने कहा ये जो 2 लोगों को आपने भेजा ना, इनको फटाफट से लंच ब्रेक से पहले वापस भेजना, राइट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर नेवर एवर मेस विद योर मैनेजर, राइट। आपको अपने मैनेजर से बना के रखनी है। सो दैट इज वन टिप फॉर द MBA प्रोफेशनल्स। सो लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा दैट इज ऑल अबाउट फ्यूल फॉर योर बॉडी एंड ब्रेन, राइट। हम लोग सब जो है ना वो अपनी बॉडी का ध्यान तो रखते हैं, वी ईट फूड, वी ईट गुड फूड, बट व्हाट अबाउट आवर ब्रेन्स, right? So we'll talk in detail about that. Before starting, let me talk something about myself. Balkrishna ने मेरा introduction दे दिया है, but still I would love to introduce myself और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ. We have this session for about 45 minutes, and for the last 15 minutes we'll address your questions. So I was born and brought up in Panipat, a small town in state of Haryana, and that is also called a town, a city of 3 battles, right? 3 battles were fought there. So I lived about for 25 years in that town, and after that, during my schooling, I was a bit athletic, right? I was into sports. तो ऑलमोस्ट सारी स्पोर्ट्स मैंने खेली. आई लर्न मार्शल आर्ट्स. थोड़ा सा मैंने ट्रेनिंग्स लेनी स्टार्ट करी, और ऑलमोस्ट इन जब तक मैं क्लास 6 में पहुंचा ना, आई वॉज क्वाइट वीक, बहुत ज़्यादा वीक था. और एक बार एक फुटबॉल मैच में समवन जस्ट पुश्ड मी एंड आई ब्रोक माई हैंड. मेरे हाथ की हड्डी टूट गई एंड फ्रैक्चर हो गया. So then I realized, Rahul, what is it all about? ये क्या हो चुका है? So I decided to train myself. मुझे अपने आप को ट्रेन करना था. तो मैंने एक ऐसा जरिया ढूंढा जहाँ पे मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकूं. And when I was in class 6th, जब मैं 6ठी क्लास में था, तो मैंने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को स्टार्ट किया. And that was not only physical training, I was getting trained mentally also, because जैसे जैसे आप अपने physical strengths या physical capabilities को पहचानते हैं, आपकी mental capabilities भी साथ में uplift करती हैं. Because every one of you already know a healthy body has a healthy mind. अगर आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है तो आपका दिमाग, आपका माइंड जो है वो साथ देगा. I'll give you an example. आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं या आप कहीं पे किसी से कोई डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपके नाखून में, एक छोटे से नाखून में भी कुछ हलचल होगी ना, आपको चोट लगी होगी, तो आपका आधे से ज्यादा दिमाग, आधे से ज्यादा माइंड विल बी फोकस्ड ऑन दैट नेल. आप उसको बार बार अपना माइंडसेट जो है ना वहां पे लेके जाएंगे. सो ये तो एक नाखून की बात थी, बट व्हाट अबाउट इफ यू आर एक्चुअली आप घिरे हुए हो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से. सो योर बॉडी हैज टू बी वेरी हेल्दी.
आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा. एंड बिलीव मी, आज के टाइम पे देयर आर वेरी वेरी फ्यू पीपल हु आर कंप्लीटली हेल्दी. आप अपने आप से खुद ये सवाल पूछिएगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज इस सेशन में हैं, जो अपने आप को बिल्कुल हेल्दी फील करते हैं या महसूस करते हैं या अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं. एंड आई वुड से ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, on the scale of 1 to 10, where 1 is the lowest and 10 is the higher point, आप अपनी हेल्थ को कहाँ पे रेट करते हैं? So I'm sure कुछ लोग 1 रेट करेंगे, कुछ लोग 2 रेट करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे किसी को सर्वाइकल है, किसी को लोअर बैक प्रॉब्लम है, किसी को पेट का प्रॉब्लम है. So everybody in the room has some or the other health issue. Sorry everyone, there was a technical glitch, but we are back. Okay, so I was talking about a healthy body and a healthy mind. Going further, I was also talking about myself. So 6th class में मैंने अपनी training start करी, and by the end of the 10th class, I trained myself to a level where I was able to train other people. मैं already एक martial arts में एक black belt holder बन चुका था. फिटनेस में मैं आ चुका था. उसके बाद 11th and 12th I was just practicing, and in the year 1999 when I passed my 12th, उसके बाद मेरा समय आया कॉलेज में जाने का. तो कॉलेज में मैंने जो एडमिशन लिया वो लिया होटल मैनेजमेंट में. होटल मैनेजमेंट में मैंने एडमिशन लिया. रीजन, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था. राइट, अब खाना बनाने का शौक मुझे पूरा तो करना था, बट बिलीव मी 1999 से पहले तक एक जुनून था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने. बट वो इंडियन आर्मी ज्वाइन क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज 1997 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में मेरी आईसाइट जो है वो वीक हो गई. और वीक कितनी हुई? 6/6 नंबर से वो सीधा पहुंच गई -10. राइट, सो वो एक्सीडेंट ने वो सपना तो छोड़ दिया, बट दूसरा सपना क्या था? फिटनेस एंड खाना बनाना. तो होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया. उस 5 साल, एक्चुअली में 4 साल के डिग्री कोर्स में आई एंजॉयड माई लाइफ, आई स्टडीड वेल, एंड आई बिकेम अ शेफ. मैं एज अ शेफ बन गया, और उसके बाद मैंने होटल इंडस्ट्री में जाना शुरू कर दिया. होटल्स में जॉब की फॉर अबाउट 1.5 or 2 years. और 2 साल जॉब करने के साथ साथ जो पैशन था फिटनेस का, वो अभी भी चल रहा था. जो फिटनेस का पैशन था वो अभी भी चल रहा था. तो उस पैशन को पूरा करने के लिए, उस चीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर. मैं साइड बाय साइड अपने जॉब के साथ और स्टडीज करने लग गया फिटनेस इंडस्ट्री में. तो जो फिटनेस इंडस्ट्री में स्टडीज करते करते आई रियलाइज दैट आई हैव द कैपेबिलिटीज टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स. यहाँ पे एज अ शेफ मैं टेस्ट बर्ड्स को जो है वो टैम्पर कर रहा था, बट जो फिटनेस इंडस्ट्री है वहाँ पे आई वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म अदर्स पीपल्स लाइव्स. मैं उनकी हेल्प कर पा रहा था. सो फिर दूसरी चीज जो होटल इंडस्ट्री में मुझे लगी कि या तो मैं अपना खुद का कोई सेटअप खोलूं, अदरवाइज मुझे जिंदगी भर जॉब करनी पड़ेगी. एंड आई वॉज नॉट एट ऑल अ जॉब पर्सनैलिटी. मैं जॉब पर्सनैलिटी कभी भी नहीं था. आर्मी तक तो मुझे था कि हाँ अगर मैं जॉब करूंगा तो करूंगा, बट उसके बाद आई वॉज नॉट अ जॉब पर्सनैलिटी. मुझे ये था कि मैं हमेशा से कुछ अपना काम जरूर करूंगा. तो वहां पे होटल इंडस्ट्री में जाके, मोस्ट ऑफ यू नो दैट वहां पे जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता. राइट, वहां पे 8 घंटे की शिफ्ट नहीं होती. दैट इज अगेन अ वेरी टफ जॉब. बहुत टफ जॉब है होटल इंडस्ट्री की. आपको एक्चुअली में हार्ड वर्क, जो एक्चुअल हार्ड वर्क होता है वो करना पड़ता है. ऐसा टाइम भी आया जब ट्रेनिंग के टाइम पे या जॉब के टाइम पे हम लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते थे. सो वी डिड एक्चुअल हार्ड वर्क. सो वहां से मैंने अच्छा, फिर जो इनकम की बात थी, जब मैं पास आउट हुआ था तो बहुत ज्यादा वहां पे इनकम पोटेंशियल नहीं था. सो आई रियलाइज्ड कि अगर मैं
इसी लेवल पे अपने आप को ग्रो करता रहूंगा तो आई विल एंड अप नोवेयर। आज के टाइम पे जो फाइनेंशियल चीजें हैं, मैं वहां पे कहीं पहुंचूंगा ही नहीं। I will not be able to actually live the life I wanted, right? So मेरा वो डिसीजन, I think कि वो डिसीजन सही था। I moved on to the fitness industry, और फिटनेस इंडस्ट्री में मूव ऑन करने से पहले मैं कॉल सेंटर में भी जॉब किया करीब 2 साल, ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना था। तो पैसा कमाना वाज माय हंगर, है ना। मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया 2 साल, और वहां पे मैं लोगों को देखता था, उनका माइंडसेट, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, यार ये क्या जॉब आ गई, व्हाट इज दिस, रात को जागना पड़ता है, हेल्थ खराब हो रही है, ये है। तो आई वाज इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, फिटनेस मेरे खून में था, और साथ के साथ होटल मैनेजमेंट जॉब करके आया था। तो होटल इंडस्ट्री की जॉब के लिए कॉल सेंटर वाली जॉब तो कुछ थी ही नहीं। मैं मजे में जॉब करता होता था, और जो कॉल सेंटर में जॉब कर रहे थे वो परेशान रहते थे। सो आई वाज वन ऑफ द टॉप सेलर्स इन कॉल सेंटर, और काफी अच्छा मैंने वहां पे इनकम कमाई। बट स्टिल वो जो फिटनेस वाला जो चीज थी ना, वो अभी भी एंटर हो रही थी। तो आफ्टर 2 इयर्स मैं आ गया अपने एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में, और फिर मैंने अपना पहला हेल्थ क्लब ओपन किया। सो वो हेल्थ क्लब मैंने करीब 15 साल रन किया। आई ट्रांसफॉर्म्ड मेनी पीपल, जिसमें मोटे लोगों को पतला किया, पतले लोगों को मोटा किया, लोगों के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक किया। बहुत सारी चीजें जो है वो विद माय ब्रदर, मेरा ब्रदर है अंकुर खरबंदा, हम दोनों ने अच्छा सेटअप किया, अच्छा बिजनेस रन किया, एंड वी वर वेरी हैप्पी। बट आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, कंपटीशन जो है वो आ जाता है, राइट। कंपटीशन आपके लाइफ का एक पार्ट है, राइट। और आपने 3 इडियट्स में सुना होगा ना, लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन यू विल बी यू विल बी अवे, राइट। सो हम लोग के साथ क्या हुआ, जब हमने जिम सेटअप किया, सो इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो एक पर्टिकुलर एरिया मतलब लोकेशन वाला एक सेटअप होता है ना, एक पर्टिकुलर लोकेशन से ही आपके पास क्लाइंटेज आता है। सो हम लोग मिडिल क्लास के लोग थे। जब हमने जिम सेटअप किया तो वी वर ओनली 2 gyms इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। आफ्टर अबाउट 15 ईयर्स, 15 साल के अंदर अंदर उस लोकेशन में हाफ अ किलोमीटर एरिया, एंड देयर आर 37 हेल्थ क्लब्स, 37 gyms। अब आप सोच के देखिए कि सबसे पुराना जिम हमारा, एक्सपर्ट्स हम, बट लोग करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, नए नए फ्रेंचाइजी सेटअप्स ये आ रहे हैं। तो लोगों का माइंडसेट है, जो दिखता है वो बिकता है। नॉलेज पार्ट जो है ना, वो हमेशा बाद में आता है, पहले तो लोग देख के एंटर करेंगे। सो कंपटीशन वाज अगेन वेरी हार्ड, हम लोग के साथ बहुत कंपटीशन हुआ। जिनकी जो फीस थी वो दैट वाज जस्ट 2000 रुपीज पर मंथ। बट जो बड़े बड़े चेन्स आए, उन्होंने कंपटीशन करने के लिए क्या किया, 10,000 रुपीज में वो अपनी मेंबरशिप बांटने लग गए फॉर ईयर। एक साल की 10,000 रुपए की मेंबरशिप। एक और कंपटीशन आ गया, 11,000 रुपए में 3 साल की मेंबरशिप। हाउ वुड बी सर्वाइव? सो अल्टीमेटली एक बोल्ड स्टेप हमें लेना पड़ा, हमें उस जिम को क्लोज डाउन करना पड़ा, बिकॉज जो क्लाइंटेज था वो उस लोकेलिटी में तो सिर्फ उतना ही होगा, बट आप उसको रन कैसे करोगे, राइट। सो वी वर ऑन रेंट। सो इस तरह से हमारा बिजनेस है। देन अगेन, नेवर गिव अप, कभी हारना नहीं। जब हारना नहीं तो यू हैव टू मूव अगेन, यू हैव टू बाउंस बैक। तो वो बाउंस बैक करने के लिए वी एक्चुअली केम इनटू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेना शुरू किया। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, आपके बिजनेस को स्केल करने की क्षमता रखता है। आपके बिजनेस को एक्चुअली में वो क्या करता है, लोकेशन बैरियर को तोड़ देता है। नाउ देयर इज नो लोकेशन बैरियर, राइट। व्हाट आई डू इज आई ट्रेन पीपल ऑनलाइन, ऑनलाइन कंसल्टेंसी देता हूं मैं। अगर किसी को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, आई हैव अ क्लिनिक, तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी वो मेरे से बुक कर सकता है। एंड उनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, किसी को सर्वाइकल है, किसी को लोअर बैक पेन है, किसी के नी पेन है, एनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, diabetes, I consult these kind of people, and I try to help them with the good nutrition and good supplementation,
राइट और सबसे अच्छी बात है, जो चीज एलोपैथी में नहीं होती वो सप्लीमेंटेशन और अच्छी डाइट से हो सकती है, राइट। दैट इज द पार्ट ऑफ द नेचर। नेचर के फूड से जो हम ठीक कर सकते हैं वो दवाइयां ठीक नहीं कर सकती, राइट। सो दैट इज वन पार्ट। अगेन I came into education. So it's been about 15 years I'm training the trainers, right? जिन लोगों को certification करना है, trainers बनना है. So I am associated with one of the best organizations you can search on Google, that is ISA, International Sports Science Association. So International Sports Science Association is a college and it runs in about 90 countries. So इसके साथ साथ we have online home-based network business. We have a team of about 300 people and about 1,000 customers. So इतना बड़ा network create करने के लिए we have to spend time. वो time spend किया, वो effort लगाया, वो सारी चीज की. और इस पूरे बीच में जितना भी ये time spend था उसके बीच में I tried 7 different businesses. You won't believe, 7 different businesses with partnerships and without partnerships. और जितने भी partnerships में मेरे business हुए वहां पे सब में loss हुआ. That is my personal experience. I'm not saying that partnership is bad, but it is sometimes. आपका जो partner होना चाहिए, that has to be loyal. So हमने जो सीखा है वो error and trial method से सीखा है, right? और error and trial method से, so I would just say, if life gives you lemons, you just have to make a lemonade and drink it and enjoy your life. आपको bounce back करना है और नई नई चीजें सीख के वापस ग्रो करने के लिए आपको मोटिवेट रहना है. You don't have to quit. You don't have to quit. You never give up trying to build the world you can see, even if others can't see it. Listen to your music and your own music only. It's the one that make the sweetest sound. आपके अंदर जो म्यूजिक बज रहा होगा, जो आपका गोल होगा, जो आप सुन रहे होगे, वो सिर्फ आपको ही आपके गोल की तरफ बढ़ा पाएगा. और मैं यहाँ पे 2 तरफ के गोल की बात कर रहा हूं. फर्स्ट इज योर मेंटल गोल. मेंटल गोल मतलब जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं. सेकेंड वन इज योर फिजिकल गोल. अब फिजिकल गोल में आपकी हेल्थ जो है वो मैटर करती है. एंड आई वुड डिवाइड योर गोल्स इनटू एक्चुअल 4 कैटेगरीज. अब ये 4 कैटेगरी कौन सी हैं? योर माइंड. फर्स्ट वन इज योर माइंड. यू कैन जस्ट नोट डाउन दैट. माइंडसेट जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए और आपको एक्चुअली में आपका गोल सेट होना चाहिए. देन इज योर हार्ट. आपका जो हार्ट है दैट हैज टू बी वाइज. आपको लोगों की हेल्प कैसे करनी है. सी यू पीपल आर डूइंग MBA. आप MBA कर रहे हैं एंड most of the MBA professionals nowadays are jobless. ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, आपको पता है. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुली अपनी जॉब्स कर रहे हैं या सक्सेसफुली स्टार्टअप कर रहे हैं या अपने बिजनेस को स्केल कर पा रहे हैं. बट most of the people, 95% people who are doing the professional courses are jobless. और ये सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज की बात नहीं है. आज के टाइम पे आप जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, द कोविड, 40% जॉब्स जो है वो जा चुकी हैं. लोग ले ऑफ हो रहे हैं. सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है किसी के पास. सो Warren Buffett once said, you don't have to put all your eggs in one basket. So just think of that, कि आपको अलग अलग ऐसे कौन से सोर्सेज इनकम के बनाने हैं. Today what we will learn is not just to be an employee but to be an entrepreneur. आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं. जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यही चीज बोलते हैं. वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि बी एन एंटरप्रेन्योर, बी सेल्फ मेड. आप खुद ऐसा बनिए कि आप लोगों को जॉब्स दे सकें, आप जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें, आप सीख सकें, आप अपने माइंडसेट को वैसा कर सकें कि आप लोगों की हेल्प कर पाए. सो हाउ कैन यू डू दैट? देयर आर मेनी वेज. थिंक ऑफ दैट. सोचिए आप वो कैसा कर सकते हैं. सोचिए कि आप ये प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज कर सकते हैं. आई हैव अ टीम ऑफ ट्रेनर्स. हम एक टीम की तरह काम करते हैं और टीम की तरह हम लोगों की हेल्प करते हैं लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. राइट. सो आई गिव यू 2 पॉइंट्स. वन इज माइंडसेट एंड द अदर इज हार्ट. हार्ट आपका
लोगों के लिए काम करना चाहिए। जब लोगों के लिए आप काम करेंगे तो लोग आपके लिए काम करेंगे, बिलीव मी दैट, राइट। तीसरी चीज है आपका हेल्थ। आपकी हेल्थ जो है वो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखनी है। अगर हेल्थ आपकी प्रायोरिटी में होगी तो आपके बाकी सारी चीजें जो है ना वो सेंटर में रहेंगी। यू हैव टू गिव, यू हैव टू डिवोट सम टाइम, and you have to stay away from a disease called excusitis. This is the most dangerous disease you can ever hear of. I believe आप लोगों ने नाम सुना होगा। किसने इस बीमारी का नाम सुना है, एक्सक्यूजाइटिस? You just can type in the chat box, yes, I have heard it. You can type in the chat box. आपके वहां पे chat box है, अगर आप टाइप कर सकते हैं एक्सक्यूजाइटिस। If you have not heard, you can just type no. Okay, I'm waiting for your answers. Can you do that? All right, so let's continue. Then the fourth part is your soul. You have to actually go inside. आपको अपने अंदर झांक के जरूर देखना है अपनी लाइफ में। सिर्फ बाहर ही हमें काम नहीं करना, राइट? आजकल एक बहुत फेमस कोटेशन चल रहा है, कोविड में हम बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन में है, सो इफ यू कांट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। आप अंदर चले जाइए। जब आप अंदर जाएंगे, आप सॉलिट्यूड में रहेंगे, आप अपने आप से बात करेंगे, यू विल हैव अ विजन टू क्रिएट समथिंग गुड। आप कुछ अच्छा बना पाएंगे अपनी लाइफ में, राइट? और इन चारों चीजों को अगर आप मैनेज करते हैं तो आप अपने गोल्स को सेट कर पाते हैं। अब वो गोल क्या हो सकता है? वन इज योर फिजिकल गोल। किसी का फिजिकल गोल होता है मुझे इस टाइम पीरियड में 10 kgs लूज करना है। किसी का फिजिकल गोल होता है कि मुझे 10 पाउंड्स मसल गेन करना है। किसी का जनरल फिजिकल गोल होता है कि मुझे जनरल फिटनेस चाहिए, आई वांट टू मूव फ्रीली, मेरे जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, मुझे सर्वाइकल है, मेरे को बैक पेन हो रहा है, मुझे इन दर्दों से दूर जाना है, आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द पेन्स, मुझे पेन किलर्स से दूर जाना है, आई डोंट वांट टू विजिट डॉक्टर्स, बहुत हो चुका अब डॉक्टर्स के, मैं बहुत जा चुका हूं, आई एम फेड अप बाय गोइंग टू डॉक्टर्स अगेन एंड अगेन, मुझे ऐसा कोई सोल्यूशन मिल जाए कि मैं डॉक्टर्स के पास ना जाऊं। ये बिलीव मी, सब कुछ आपके हाथ में है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल इनसाइड यू। आप खुद सारी चीज को मैनेज कर सकते हैं इफ यू एक्चुअली ट्रेन योर माइंड। आप अपने दिमाग को अगर ट्रेन कर सकते हैं, अपने आत्मा को, अपनी सोल को अगर आप स्ट्रांग बना सकते हैं, यू कैन एक्चुअली डू दैट। एंड पीपल, लेट अस बी लिटिल इंटरैक्टिव। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, यू कैन जस्ट टाइप इन, आप उन आंसर्स को टाइप कर सकते हैं। हम इंटरैक्टिव रहेंगे। आई विल फील दैट मैं आप तक कनेक्ट कर पा रहा हूं, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद यू। और दूसरी चीज, इन दिस सेशन, ये सेशन के बाद अगर आप में से किसी भी एक इंसान की लाइफ में एक छोटा सा भी इम्पैक्ट मेरी तरफ से आ सकता है, अगर लाइफ में आज से कुछ साल बाद आपकी तरफ से किसी भी एक बंदे को सक्सेस मिल जाती है या वो ट्रांसफॉर्म कर पाता है फिजिकली या मेंटली, तो आई थिंक दिस सेशन अ सक्सेस फॉर मी, राइट? मैं नहीं जानता कि a whole lot of bunch of people will be successful, but अगर एक भी इंसान को मैं कनेक्ट कर पाया और उनको सक्सेस दे पाया या एक मोटिवेट कर पाया, या फिजिकली या मेंटली, दिस सेशन विल बी अ सक्सेस फॉर मी। सो आप इंटरैक्ट करिए मेरे साथ चैट बॉक्स में। इफ यू अग्री विद मी, just type in yes if you agree with me, or don't type yes, just type y for yes. So I think everybody is there with me. Okay, great. So let me share a slide with you. एक presentation मैं आप लोगों के साथ share करता हूं और उसमें मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं. Okay, so I would welcome you again for a session called Fuel for Body, Brains, and now we are unleashing the secret. आपको मैंने अपने बारे में काफी सारी चीजें बताई। इस प्रोफेशन में मैं करीब पिछले 22 साल से हूँ, लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, अपनी टीम को संभाल रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ। What do I do? You already know now. And let me tell you, I am an author as well. एक बुक है मेरी कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से,
लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से भागते हैं, बट यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम दैट बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल बैड. एंड आई विल बी कमिंग अप विद द सीरीज ऑफ टाइटल्स नाउ. सो नेक्स्ट टाइटल जो मेरा आने वाला है दैट इज ऑन शुगर्स, और इसके बाद और भी बहुत सारी टाइटल्स आई एम जस्ट प्लानिंग ऑन. सो ये सारी चीजें होने के साथ साथ on today's topic, fuel for body and brains, let us go on. So this is me, an entrepreneur and a fitness icon. Abhi fitness mein, I also did modeling for one of the topmost magazines of the world. If you have heard of Men's Health, वहाँ पे as a lead model मैंने 4-5 साल काम किया है, और इसके साथ साथ I won the national gold medal in martial arts, in kung fu, और बॉडी बिल्डिंग में भी मैं रहा हूँ कुछ साल तक. उसके साथ फिर अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आ गया, तो अपने बिजनेस पे ध्यान देने लग गए. एंड दैट इज ऑल अबाउट मी. कैसे करना है हमें फिटनेस को, कैसे इंप्रूव करना है, अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव करना है, न्यूट्रिशन और हेल्थ कैसे अपना इंप्रूव करना है, कैसे हो सकता है ये सब कुछ. इज इट पॉसिबल डू ईच एंड एवरीथिंग? क्या हम सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे? द क्वेश्चन इज हाउ टू डू दैट. बट लेट मी टेल यू, बिफोर एनी हाउ, किसी भी हाउ कैसे होगा, उससे पहले यू हैव टू नो व्हाई यू वांट टू डू दैट. आपको करना क्यों है? अगर आपको फिट होना है, क्यों फिट होना है, आपको वेट लॉस करना है, आपका वो रीजन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू हैव अ बीच बॉडी, आप बीच पे किसी को वो बॉडी दिखानी है, सो दैट इज योर गोल. आपको कोई मॉडलिंग शूट करना है, सो यू वांट दैट 6 पैक एब्स, राइट. आपको वेट इंक्रीज करना है, यू हैव टू हैव अ कंपटीशन, आपको स्टेज पे जाना है, राइट. ये तो फिटनेस की बात हो गई. बट अगर हम बिजनेस की बात करें, why do you want to start a business? क्यों स्टार्ट करना है, और कौन सा पर्टिकुलर बिजनेस आप स्टार्ट, you have to be clear. फोकस आपके दिमाग में बहुत ज्यादा होना चाहिए. when you begin with end in the mind, you start good. जब आप एंड गोल को पहले सोच लेते हैं और उसके लिए प्लान कर लेते हैं, तो आपका जो स्टार्ट होता है दैट इज ऑलवेज गुड एंड ऑलवेज फ्रूटफुल. जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो हमेशा फ्रूटफुल होता है. So why has to be very strong, and why is not always has to be on your mind. It has to be inside your heart. वो सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए, वो आपके दिल में होना चाहिए. That has to be your dream, that has to be your goal. और अगर आपका ड्रीम, एक सिंगल ड्रीम आपका गोल बन जाता है, और गोल कैसे बनाते हैं हम अपने ड्रीम को? When your dream is written down, जब आप अपने ड्रीम को लिख लेते हैं, दैट कन्वर्ट्स टू योर गोल. फिर आप उसके लिए प्लान करते हैं, और जब आप प्लान करते हैं किसी चीज को, तो आप उसके लिए एक्शन में आ सकते हैं, और जब आप एक्ट करते हैं, देन ओनली यू एक्चुअली अचीव एंड फुलफिल योर ड्रीम्स. सो गाइज, व्हाई आपको एक्चुअली में ढूंढना है अपना, आपका पर्पस जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए. किस कारण से आप फिट होना चाहते हैं, और अगर फिट हो रहे हैं तो क्या आप उसको सस्टेन रख सकते हैं? अगर आप किसी न्यूट्रिशन प्लान में आ रहे हैं, आपने कोई डाइट शुरू करी है, तो क्या वो डाइट लॉन्ग टर्म रख सकते हैं? क्या आप हेल्दी लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, या आपके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हैं? बिजनेस की अगर बात करें, क्या आप बिजनेस को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की तरफ से लेते हैं, या आप लॉन्ग टर्म लेगेसी बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट बनाना चाहते हैं? सो आपका पर्पस जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट. आप एमबीए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इट इज जस्ट टू एक्चुअली डू अनदर कोर्स, और यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ. आप उस एमबीए की डिग्री को लेके कुछ अलग करना चाहते हैं जो बाकी लोग नहीं करते, राइट. सो पर्पस आपका जब क्लियर होगा, यू एक्चुअली विल बी डिफरेंट, और अलग लोगों को लोग पहचानते हैं. भीड़ में अगर आप रहेंगे, तो भीड़ में लोगों को कोई नहीं पहचानता, भीड़ में आप सिर्फ भीड़ है. बट अगर कोई लीडर है, लीडर्स आर नॉट बॉर्न. डू यू बिलीव दैट लीडर्स आर बॉर्न? बट लीडर्स ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड. लीडर्स, बॉर्न लीडर होते हैं, बट कितने होते हैं? बहुत कम.
but leaders also can be created. आप लीडर बन सकते हैं अगर आप अपने आप को ट्रेन करें. You have to be trained to become a leader. आपको अगर लीडरशिप क्वालिटीज लानी है तो आपको अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. डर क्या है? What is fear? What is fear? बहुत से लोग फिटनेस प्रोग्राम शुरू ही नहीं कर पाते. जनवरी मंथ में जो फर्स्ट वीक होता है ना, 1 जनवरी से 7 जनवरी, हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बिजनेस को यहाँ स्केल कर देंगे, हम फिटनेस में वहां पहुंच जाएंगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. बट कितने लोग 15 तारीख के बाद ये सारी चीजें कर पाते हैं? After 15th January, most of us forget what we actually promised with ourselves. हम अपने आप से जो प्रॉमिस करते हैं ना, वही भूल जाते हैं. सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में प्लान करते हैं, अपने गोल्स को डिसाइड करते हैं, उनको लिखते हैं और उनको अचीव करने के लिए फाइट करते हैं. You actually have to do what others are not doing. Right? मैं आपके साथ सक्सेस के कुछ रूल्स जो हैं वो शेयर करूंगा. यू कैन राइट देम डाउन. आप इनको लिख सकते हैं. तो सक्सेस के जो रूल्स है ना, वो सक्सेस आप ये लाइफ के रूल्स हैं. राइट? दिस कैन बी इन द फिटनेस, दिस कैन बी इन न्यूट्रिशन प्लान, दिस कैन बी इन योर बिजनेस, दिस कैन बी फॉर योर लाइफ. इफ यू वांट टू सक्सीड, अगर आपको फिटनेस में सक्सेसफुल होना है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिम्स में जाते हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, बट कितने लोग कंपटीशन में जीत पाते हैं? बट कितने लोग वो अच्छी बॉडी बना पाते हैं? जिम में एडमिशन लेना या किसी फिटनेस प्लान में एडमिशन लेना या एनरोल करने से आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी. उसको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एफर्ट करने के बाद वो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी. वो पेन आपको सहना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस से भागना पड़ेगा. आप लाइफ में एक ही चीज बना सकते हैं, या तो आप बहाने बना सकते हैं या आप पैसे बना सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. तो आपको क्या बनाना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं. आपको एक्चुअली में बनाना क्या है लाइफ में? पैसे बनाने हैं, अपने गोल्स अचीव करने हैं, या बहाने बनाने हैं? आप एमबीए कर रहे हैं आज के टाइम पे, एमबीए से पास होने के बाद, या जिन लोगों को अभी इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, व्हाई आर यू टेकिंग द एडमिशन? आपको इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना है? व्हाट इज योर पर्पस? फाइंड दैट पर्पस. यू हैव टू फाइंड दैट पर्पस. उसके बाद आपका वो पर्पस जो है वो फुलफिल हो पाएगा अगर आप इस कोर्स को एक्चुअली में कर पाए. क्योंकि आप इस कोर्स को अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आपका पर्पस जो है वो रियल होगा, आपके दिल में होगा. अदरवाइज दिस इज अनदर कोर्स फॉर यू. आप सिर्फ 2 साल यहाँ पे लगा के चले जाएंगे और लाइफ में फिर आप भटकते रहेंगे. And you don't want that. Your parents don't want that. They have actually spent lakhs of rupees on you. अभी तक जो आप कर रहे हैं वो आप अपने पैसों से नहीं कर रहे. You have some responsibility for your family. You have some responsibility for this country. आपको वो सारी चीज जो है वो एक्चुअली में ध्यान देनी है, आपको सीखनी है वो सारी चीजें. तो वो जो रूल्स हैं, I have 5 rules for you. Just write down the rules. First of all, आपको सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से हटना होगा. You have to be away from the distractions. डिस्ट्रैक्शंस के एडिक्शन से आपको हटना होगा. वो एडिक्शन किस चीज का होता है? अगर आप कोई फिटनेस प्रोग्राम में जा रहे हैं, राइट, आपने जिम ज्वाइन किया है, तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? आपके दोस्त आपसे मिलने आ रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, सिंसियर वर्कआउट कर रहे हैं, और आप जो है, आपने देखा होगा बहुत से लोग सिर्फ गप्पे मारने जाते हैं जिम्स में. बहुत से लोग फिटनेस प्रोग्राम तो करते हैं, सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाते हैं जिम में. बट इफ यू आर फोकस्ड, आपका कोई पर्पस है, तो आप एंजॉय करने नहीं जाएंगे. आप एंजॉय तो करेंगे, बट यू विल एंजॉय विद योर गोल. आप अपने गोल्स को अचीव करते करते एंजॉय करेंगे. आपकी एंजॉयमेंट अलग होगी. मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो भी आई है अभी, एंटरटेनमेंट वर्सेस एजुकेशन. राइट, आप उसको देख सकते हैं. आई हैव अ चैनल विद राहुल खरबंदा 7. राइट, यू कैन जस्ट गो देयर एंड वॉच वीडियोस. तो वहां पे आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं. आई एक्चुअली बिल्ड और मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस. तो एडिक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शन से आपको हटना है. राइट, अब ये डिस्ट्रैक्शन और कौन से हो सकते हैं? न्यूट्रिशन का प्लान हमने किसी न्यूट्रिशनिस्ट से लिया. जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे से एक न्यूट्रिशन का प्लान लिया, आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं. घर में पार्टी आ गई और घर में जलेबी आ गई और छोले भटूरे आ गए, और आपका सबसे पहले मन कर गया कि यार चलो यार एक ही दिन तो खाना है. बट आपको, अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है, अगर आपको पता है कि आपके कुछ गोल्स हैं,
So champions are made just with their purpose in mind, और जो अगर उनका गोल होता है उस पे फोकस्ड होते हैं. जब मैं कंपटीशन में था ना, जब बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन करता था, तो 3 महीने 4 महीने तक आप शुगर नहीं ले सकते, आप नमक बहुत कम लेते हो, आपको अपनी डाइट पे इतना फोकस करना पड़ता है, देन ओनली यू गेट दैट श्रेड. आप अपने मसल्स को तभी आप शो कर सकते हो. ऐसे ही आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो छोटी छोटी चीजों से, राइट? यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू एक्चुअली ले ऑफ दैट डिस्ट्रैक्शंस व्हिच कम ऑन योर वे. सेकेंड रूल जो है वो है एक्सक्यूजेस से बचिए. गेट अवे फ्रॉम एक्सक्यूजेस. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात करी थी, ये बहुत बड़ी बीमारी है. लेजीनेस, एक्सक्यूज, ये सबसे बड़ी बीमारी है. आपको काम आज करना है बट आप टाल देते हो. दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन. जो चीज आज करनी है, यू हैव टू बी अकाउंटेबल, यू हैव टू बी टीचेबल. आपको सीखते रहना है, आपको लर्न करना है चीजों को. अगर आप सीखना छोड़ देंगे, आई एम स्टिल लर्निंग, आपको जान के आई डोंट नो हाउ वुड यू फील, बट आई हैव ऑलमोस्ट मोर देन 25 सर्टिफिकेशंस इन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन. 25 से ज्यादा सर्टिफिकेशन. आई एम स्टिल लर्निंग. मैं हर चीज सीख रहा हूं. आई एम इनटू अ बिजनेस जहां पे हम रोज नई चीज सीखते हैं. आई हैव मेंटर्स. गो टू अ मेंटरशिप प्रोग्राम. आपका कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए लाइफ में. जो बड़े बड़े सीईओज हैं कंपनीज के, उनके भी मेंटर्स होते हैं, राइट? उनके भी कोचेस होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि एवरीवन नीड्स अ गुरु. गुरु सबका होना चाहिए. अगर गुरु नहीं है तो आपको डायरेक्शन कौन दिखाएगा, आपको पाथ कौन दिखाएगा, राइट? अर्जुन के भी गुरु थे, कर्ण के भी गुरु थे, राइट? तो गुरु सबके होने चाहिए. भगवान राम के भी गुरु थे. जब भगवान के गुरु थे तो आपके क्यों नहीं हो सकते यार, right? Someone has to be there to show you the right direction. Someone has to be there to show you the right path. Excuses से आपको बचना है. Rule 2, don't go to the excuses. इस बीमारी से आपको अपने आप को बचा के रखना है. Number 3, and that is one of the best rules I feel. Change. आपको बदलना होता है, और कोई भी चेंज शुरुआत में हार्ड होता है. कोई भी चेंज. आपको फिटनेस के लिए सुबह जल्दी उठना है, दैट इज हार्ड. आपको समोसे खाए, छोले भटूरे खा रहे हैं, आप उनके बिना नहीं रह सकते. शुगर की आपको एडिक्शन है, अल्कोहल की आपको एडिक्शन है, स्मोकिंग की आपको एडिक्शन है, उसको छोड़ना पड़ेगा. दैट इज हार्ड, राइट? यू हैव टू बी फिट. ये सोचना ही आपके लिए हार्ड होगा, राइट? तो कोई भी चेंज शुरुआत में हार्ड होता है. कोई भी चेंज. आप अभी घर में रह रहे हैं, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा. दिस इज अ चेंज. दिस विल बी हार्ड. आप एंजॉय करेंगे बट दिस विल बी हार्ड. आपको सारी चीज खुद करनी पड़ेगी. आपको अपने कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, आपको हो सकता है अपना खाना खुद बनाना पड़े, आपको पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, आपको अपनी चीजें खुद मैनेज करनी पड़ेगी. अभी तक आपकी मम्मी जो है वो आपकी सॉक्स उठाती थी, टॉवल उठाती थी, अब सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा. दिस इज अ चेंज. दिस इज एक्चुअली हार्ड. उसके बाद क्या आएगा? एनी चेंज इज हार्ड इन द स्टार्टिंग. इट इज डिस्ट्रैक्टिंग इन द मिडल. जब आप कोई भी चेंज को अप्लाई करते हैं ना, कोई फिटनेस प्रोग्राम या कोई भी बिजनेस आप करते हैं, तो स्टार्टिंग में वो हार्ड होता है. उसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट करता है आपको. क्या डिस्ट्रैक्शन आता है कि यार बहुत हो गया, कुछ हो तो रहा नहीं, चल छोड़ देते हैं. सो दैट इज वन डिस्ट्रैक्शन. बिजनेस में आप कुछ देर तक काम करते हैं, आप पर्पसफुल उसको शुरू करते हैं, आपको लगता है यार कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड. आपको लगता है यार कुछ हो तो नहीं रहा, चल कुछ दूसरा करके देखते हैं. So life is not error and trial. That has to be a specific purpose for that, right? So everything, any change is distracting in the middle, but you have to go through that. आपको उससे पार होना पड़ता है. And the end is always beautiful. The third part is beauty. जो end होता है ना, अगर आप इन दोनों चीजों को पार कर जाते हैं, end is always beautiful. To get it, you have to wait to receive this. You have to wait to get this reward. Most of you actually start something.
and quit in between. और ये जो most है ना, ये छोटा नंबर नहीं है, this is actually 95%. और मेरा जो next rule है, fourth rule, that is on this part only. Be that top 5%. You have to do things which 95% people are unwilling to do. जो वो लोग सोचते भी नहीं हैं, जो वो लोग भागते हैं चीजें करने से, वो आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको उस 5% में आना है, राइट? और उसके लिए वो चाहे आपका फिटनेस गोल हो, चाहे आपका न्यूट्रिशन प्लान हो, आपको न्यूट्रिशन प्लान में एक स्पेसिफिक डाइट है, आपको अच्छी चीजें खानी है. यू हैव टू ईट सैलेड, यू हैव टू ईट स्प्राउट्स, यू हैव टू ईट फ्रूट्स. आपको फ्राइड फूड से हटना है, आपको पिकल से दूर जाना है, आपको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, आपको शुगर से दूर जाना है, राइट? आपको अल्कोहल को क्विट करना है, आपको स्मोकिंग जो है उसको क्विट करना सीखना है, राइट? सो इसके लिए यू हैव टू बी अ डिफरेंट पर्सनालिटी. क्यों? आपको पर्पस ढूंढना है सबसे पहले. सो अप्लाई दिस रूल. मोस्ट ऑफ द पीपल who are unwilling to do few things, you have to do that thing. वो चीज आपको करनी पड़ेगी, right? And the last one is, do not surrender. And if you feel surrendering, continue to do the process. If you feel surrendering, अगर आपका मन करता है कि मैं सरेंडर कर दूं, क्विट कर दूं, स्टिल गो ऑन, स्टिल डोंट क्विट, एंड दैट इज द मंत्र फॉर सक्सेस. अगर हम एक सेट करते हैं एक्सरसाइज का, और आपका ट्रेनर बोलता है कि आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं, और आपका मसल जो है वो सोर हो जाता है 7th रेपिटेशन में, और आप उस बारबेल को अगर नीचे रख देते हैं, मोस्ट ऑफ यू विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेस, है ना? पुशअप्स लगाते हैं, आप मन में टारगेट लगाते हैं कि मैं 12 पुशअप्स करूंगा, और आप 7 पुशअप्स में ही दिल छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि बस यार और नहीं हो रहा है, एंड यू क्विट. यू विल बी अ नॉर्मल पर्सन. बट इफ यू कंटिन्यू टिल द एंड, जो आपने सोचा है अगर आप कर देते हैं, यू डोंट क्विट इन बिटवीन, अगर आपने न्यूट्रिशन प्लान को फुलफिल करना है, अगर आपको बिजनेस अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचाना है, you have your own financial goals, अगर आपको लगता है कि 2025 में I want to be a millionaire and you have a purpose for that, और उसके लिए आपको वो काम करने हैं और वो काम आप कर रहे हैं, don't quit in between, and you are doing that, you are fulfilling that dream, then you don't have to surrender. आपको surrender नहीं करना है. Then only you will actually achieve your goal. Then only you will receive what you actually want. So these are the 5 thumb rules which I suggest you all. इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ टू डू दिस. मैंने आपको कुछ रूल्स बताए. These are the rules which actually will only be applied if you have a purpose in life. Now how will you do that? कैसे होगा ये? उसे आपको कुछ डेली रिचुअल्स करने पड़ेंगे. Now what is that daily ritual? अभी शुरुआत में मैंने 4 कैटेगरीज बताई थी. हेल्थ सेट, देन यू हैव योर माइंड, फिर आपको अपने सोल पे काम करना है, अपने आपको कैपेबिलिटीज पे काम करना है, तो उसके लिए आपको डेली रिचुअल्स करने पड़ेंगे. और डेली रिचुअल्स क्या होते हैं? रिचुअल क्या होते हैं? हम किसी भी धर्म में है ना, चाहे कोई भी धर्म हो, उसके अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं, राइट? क्या आप ऐसे पूजा करते हैं, आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, आपके अपने मंत्र होते हैं, आपके अपने जो है वो गॉड होते हैं, आप उनको पूजते हैं, राइट? आप अपने व्रत करते हैं. दैट इज द रिचुअल्स यू डू. अभी आपकी सक्सेस के लिए, वो सक्सेस कौन सी होती है? योर फिजिकल, मेंटल, योर स्पिरिचुअल सक्सेस, योर फाइनेंशियल सक्सेस, उसके लिए आपको डेली रिचुअल्स करने पड़ेंगे. गेट अप अर्ली. इफ यू गेट अप अर्ली, you have your day in hand. If you get up at 12 o'clock, half the day is gone. आप जल्दी उठते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज करिए. एक्सरसाइज करेंगे, आप ब्रीदिंग करिए, आप कुछ भी एक्सरसाइज करिए.
आपको लगता है आप घर का बहुत काम करते हैं, दैट इज नॉट एक्सरसाइज. आप थक जाते हैं, बट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप थकेंगे नहीं. यू विल गेन दैट स्ट्रेंथ, यू विल गेन दैट एंड्योरेंस, यू विल गेन दैट स्टेमिना. अपने लिए आप 1 घंटा जरूर निकालिए. वो डेली रिचुअल्स, 1 घंटा फॉर योर सेल्फ, 1 hour टू अपलिफ्ट योर सेल्फ. आपको उन चारों चीजों पे उस 1 घंटे में काम करिए. ऑन योर माइंड, ऑन योर हेल्थ, ऑन योर सोल. You have to work on that, right? And on your heart. कैसे काम होगा? वो डेली रिचुअल के लिए give some time, 10 minutes, 20 minutes meditation करिए. 10 minutes, 20 minutes meditation करिए. Go inside. अपने गोल्स को सेट करिए. जरूरी नहीं है आप मेडिटेशन करें, आप गोल सेट कर सकते हैं. राइट डाउन योर गोल्स, रीड योर गोल्स, रीड समथिंग पॉजिटिव. पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स को पढ़िए. आप जितनी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अभी हम कोर्स की बुक्स पढ़ते हैं, ये जो कोर्स की बुक्स है ना, ये आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के प्रिंसिपल्स नहीं बताती है. ये आपको जॉब के लिए तैयार करती हैं, ये आपको एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए मोटिवेट कर सकती हैं, बट वो जो आपको सक्सेसफुल होने के प्रिंसिपल्स बताएंगी, दैट इज द लाइफ में जो आपको सक्सेसफुल होने के प्रिंसिपल्स बताएंगी, वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स, जो आपकी सोच पे काम करेंगी. फ्यूल फॉर योर ब्रेन. हम खाना खाते हैं अपनी बॉडी के लिए, बट व्हाट अबाउट योर ब्रेन? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. एक मजदूर है, राइट? वो सारा दिन काम करता है, 8 घंटे काम करता है, उसको दिहाड़ी मिलती है. कितनी दिहाड़ी मिलती है? 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, राइट? फिजिकल वर्क करता है. बट एक एंटरप्रेन्योर है, वो ब्रेन से काम करता है, वो फ्यूल देता है अपने दिमाग को. तो कौन सा खाना ज्यादा खिलाना चाहिए हमें? किस चीज पे हमें ज्यादा समय देना चाहिए? हमें समय देना चाहिए ज्यादा अपने ब्रेन पे. और उसका खाना क्या है? लिसन टू पॉजिटिव ऑडियोज. डोंट लिसन टू न्यूज. डोंट लिसन टू द नेगेटिव एनवायरमेंट. नेगेटिव बातों से आप दूर रहिए. डिस्ट्रैक्शंस से आप दूर रहिए. फियर से दूर रहिए. फियर इज व्हाट? फियर इज जस्ट स्मोक. वो आपके सामने सिर्फ पर्दा है. किस चीज का फियर? अरे यार, मैं जिम जाऊंगा, कहीं मुझे इंजरी ना हो जाए. आज आपने वेट लिफ्ट किया 100 kgs, और आपको लगता है कि मैं 100 kgs अगर ट्राई करूंगा तो कहीं मेरी लोअर बैक जो है वो ना टूट जाए. दैट इज फियर. वो आपकी ग्रोथ रोक रही है. आप अपने आप को तैयार करिए. फियर को हटाइए. एनी चैंपियन, बी इट इन बिजनेस, बी इन फिटनेस, एनी चैंपियन, बी इट इन स्पोर्ट्स, एनी चैंपियन, आप उनका माइंडसेट जो है ना, अगर वो देखेंगे, करोड़ों लोगों में से एक ओलंपियन निकलता है. करोड़ों लोगों में से एक ओलंपियन निकलता है. उस इंसान का जो माइंडसेट है, एक चैंपियन का, वो बहुत अलग माइंडसेट होता है. बहुत अलग माइंडसेट होता है. दैट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव टू. वो कैसा माइंडसेट होता है? दे फॉलो डेली रिचुअल्स. वो अपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल माइंडसेट पे काम करते हैं. राइट? सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है. इसके साथ साथ एक बहुत बढ़िया चीज जो आपको फॉलो करनी है. गोल्स आपने लिख लिए, मेडिटेशन आपने कर ली, एक्सरसाइज आपने कर ली, राइट? ये 3 जो डेली रिचुअल्स हैं आपने परफॉर्म कर लिए. अब जो गोल्स हैं वो आपके हाई होने चाहिए. You have to set that goals high. If you don't set your goals high, you will end up nowhere. और जो गोल्स है ना, वो स्मार्ट होने चाहिए. स्मार्ट गोल्स का मतलब होता है that has to be specific, that has to be realistic. You can achieve those goals. गोल्स कभी भी इजी आप मत रखिए. अगर आप इजी गोल्स रखेंगे, you will not and you will never push yourself. आप कभी भी अपने आप को पुश नहीं करेंगे. आपके गोल्स हमेशा वो होने चाहिए जिसके लिए आप पुश करें, जिसके लिए आपको दर्द हो. और गोल्स हमेशा इमोशनल होने चाहिए. अगर गोल आपके इमोशन से कनेक्ट हो गए ना, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे. यू वांट टू लुक बेटर, दैट इज अ नॉर्मल गोल. बट व्हाई डू यू वांट टू लुक बेटर? If that comes into your emotion, you want to inspire people with your physique. That is your emotional goal. You want to win a competition. That is your emotional goal.
आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है। क्यों होना है? कि वो बिजनेस में कामयाब होके मैं चैरिटी करूं। यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड आई डू लॉट ऑफ चैरिटी। अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो आप कितनी चैरिटी कर सकते हैं? बट अगर आप महीने में 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आप चैरिटी करेंगे तो दूसरे का भी भला होगा। So that is your emotional goal. And write down your goals. If you don't write down, you don't achieve it. Then your goal is not a goal, that is just a wish. So you have to write down your goals. I will just take another 5 minutes. मैं अगले 5 मिनट में इस सेशन को खत्म करूंगा. Then we'll have our question and answer session. I think we are already up with the time for 46 minutes. So you have to write down your goals, then manage your time. Time management में एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने YouTube पे डाली है, आप उसको चेक कर सकते हैं. How to manage time. On my website, I have a blog written down to manage time. आप टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में. Then you have to dream big. And when you dream big, to achieve that dream, you have to take action. आपको वो एक्शन भी लेना पड़ेगा. अगर आपने पतले होने का ड्रीम रखा है तो कोई दूसरा आपके उस ड्रीम को फुलफिल नहीं करेगा. भागना तो आपको ही पड़ेगा, अच्छा खाना तो आपको ही पड़ेगा. यू हैव टू टेक एक्शन. इफ यू डोंट टेक एक्शन, स्विमिंग आप तभी सीखेंगे जब आप स्विमिंग पूल में उतरेंगे. बाहर बैठ के पानी के अंदर पैर डाल के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते. गाड़ी आप तभी चलाना सीखेंगे जब आप स्टीयरिंग पकड़ेंगे, और आपकी लाइफ का स्टीयरिंग खुद पकड़ना. और जब आप स्टीयरिंग खुद पकड़ते हैं ना तो आप डरते हैं, आपको लगता है यार गाड़ी ठुक ना जाए. आप जब स्विमिंग शुरुआत करते हैं ना सीखना, तो आपको लगता है कहीं मैं डूब ना जाऊं. बट प्रैक्टिस टिल इट बिकम्स योर स्किल. वो आपकी स्किल ना बन जाए तब तक आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है. और जब आपकी वो स्किल बन जाती है, फिर आप उसी स्टीयरिंग को दोनों हाथ छोड़ के भी मैनेज कर लेते हैं. आप एक हाथ से कोक पी रहे होते हैं, एक हाथ से आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, और फिर भी गाड़ी चल रही होती है और सामने से ट्रक आता है, आप फिर भी ब्रेक लगा लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो आपकी स्किल बन जाती है. दैट बिकम्स योर मसल मेमोरी. एक मार्शल आर्टिस्ट होता है ना, उसके मसल मेमोरी में आ जाता सब कुछ. ब्रूस ली का एक बहुत बड़ा कथन था. उसने एक कोटेशन बोला था बहुत सॉलिड, एंड दैट इज वेरी फेमस. उसने बोला था कि आई डोंट फियर अ पर्सन who knows 10,000 kicks, but I fear a person who know only one kick and has practiced it for 10,000 times. तो प्रैक्टिस करिए, और आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि वो आपकी स्किल बन जाए, और वो स्किल आप ही के पास हो और किसी के पास ना हो. इस तरह की स्किल को आपको बनाना है. एंड इन द लास्ट आई एम गिविंग यू 2 another rules to be successful. One is 80-20 rule. आप में से बहुत लोगों को 80-20 रूल का पता होगा. बहुत सारे काम जो हैं वो लाइफ में आप ऐसे करेंगे जो सिर्फ 20% आपकी प्रोडक्टिविटी वो होगी, और वो 20% आपको 80% रिजल्ट दे देंगे. तो यू हैव टू सिलेक्ट दैट 20% ऑफ योर वर्क जो आपको 80% प्रोडक्टिविटी दे दे. और जब आप बाहर निकलते हैं लोगों से बात करने, अपने बिजनेस को सेटअप करने, या अपने एक्सरसाइज को करने, या न्यूट्रिशन प्लान को करने, वहां पे आप जो भी चीज करेंगे 20% ऐसी एक्सरसाइज होंगी, 20% ऐसी डाइट होगी जो आपको 80% रिजल्ट देगी. तो उन चीजों को आपको लाइफ में सिलेक्ट करना है. सेट प्रायोरिटीज, वो प्रायोरिटीज को सिलेक्ट करना. एंड कल ही मैंने एक लाइव वीडियो बनाई है विद अनदर रूल दैट इज वेरी अमेजिंग. इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. दैट इज 60-10 रूल. ये 60-10 रूल का क्या है? ये 60-10 रूल है जिसमें आप 60 मिनट के लिए अपने आप को एंगेज करते हैं किसी अच्छी चीज में. आप अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए मेहनत करते हैं, और 10 मिनट के लिए फॉर 10 मिनट्स रिलैक्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अनदर 60 मिनट्स. हर 10 मिनट, हर 60 मिनट बाद, एवरी 60 मिनट्स टेक अ ब्रेक, गो इनसाइड. दोबारा से अगले 1 घंटे के लिए गोल सेट करिए कि इस 1 घंटे में मुझे क्या करना है, इस 1 घंटे में क्या प्लान करना है. तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, क्या ये कॉर्पोरेट में भी चल सकता है? अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो 80 मिनट तो मेरे एम्प्लॉइज जो हैं वो ब्रेक ही लेते रहेंगे. इसका आंसर जो है वो मैंने लाइव वीडियो में ऑलरेडी दे रखा है. यू कैन ऑल्सो गो टू माई फेसबुक पेज, वहां पे आप इसका आंसर देख सकते हैं. आई विल नॉट शेयर दैट हियर,
we are short of time right now. So that is what I had to share with you. और इसके साथ साथ keep your energy high. There is just one thing to get you success. One thing, and that is attitude. 99% एटीट्यूड आपका काम करता है. अगर वो पॉजिटिव है तो आप अपने बेड से उठ के जिम की तरफ जाएंगे, तो आप उठ के भागने जाएंगे, तभी आप पॉजिटिव एटीट्यूड के चलते हुए एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान शुरू करेंगे, तभी आप अपनी डाइट को सुधारेंगे. एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तभी आप अल्कोहल छोड़ेंगे, तभी आप सुट्टा छोड़ेंगे, तभी आप बिजनेस में कामयाब होंगे. 99% आपका एटीट्यूड काम करता है. और वो 1% जो चीज है ना, वो क्या है? एनी गेसेस? वो भी एटीट्यूड है, वो भी एटीट्यूड है. सो एक्चुअली 100% एटीट्यूड मैटर करता है. एंड यू हैव टू बी मोटिवेटेड एवरी टाइम. सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कुछ नहीं है. सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कुछ नहीं है. क्या करना है हमें? एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, अच्छी किताबों को पढ़ना है, अच्छी बातें सुननी है, हैबिट्स चेंज करने हैं. कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको. अच्छी बॉडी चाहिए, बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अच्छा बिजनेस करना है, ऐसे दोस्तों की संगति छोड़नी पड़ेगी जो आपको खींचते हैं वापस. एसोसिएशन आपको चेंज करनी पड़ेगी. पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना पड़ेगा. मेंटरशिप प्रोग्राम में आना पड़ेगा. दिस इज व्हाट यू कैन रीच मी. इन लिंक्स के थ्रू आप मेरे तक पहुंच सकते हैं. एंड you can read few of my blogs. This is what I wanted to share with you all today. I hope मैं कुछ बातें आपके माइंड में, आपके हार्ट में, कुछ चीजें मैं आप तक पहुंचा पाया हूंगा. अगर एक भी इंसान मेरी बातों से इंस्पायर हुआ होगा, या एक भी इंसान डिसाइड करेगा कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, just write down to me. आप मुझे पर्सनली लिखिए. I'll be very thankful. Very thankful. And you all be blessed. Keep yourself safe. And I'm open for the questions. Back to the host. Thank you. Thank you so much, Mr. Kharbanda. It was very insightful session. And I'm sure students must have got that motivation to make their body, their mind healthy and fit. I think the floor is open for the questions now. Okay, so there is one question. The question is, what if I don't know what I want in my life? So find it first. You have to find it first. You cannot start your journey if you don't know where to go. अगर आपको आगरा जाना है, तभी आप आगरा पहुंच सकते हैं. अगर आपको अमेरिका जाना है, तभी आप अमेरिका पहुंच सकते हैं. अगर आप बस में बैठ जाएं और कंडक्टर को बोलें कि एक टिकट दे दीजिए, तो सबसे पहला सवाल वो आपसे पूछेगा कि भाई कहां जाना है, कहां की टिकट दूं. Now that is universe. That is actually God is asking. You have to answer, find the answer for yourself. आपको खुद वो ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए नहीं ढूंढेगा. Find the purpose. That is what I said. सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको जाना कहां है लाइफ में. Decide the goal first before starting your journey. तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे. अदरवाइज आप अपनी पूरी लाइफ भटकते रहेंगे और कोई दूसरा आपके हाथ को पकड़ेगा नहीं. If you are not able to find your goal, find a mentor. Find a mentor who can find that goal for you. Find a coach. मैं किसी ऐसे कोच की बात नहीं कर रहा जो किसी सब्जेक्ट का कोच हो. मैं आपके लाइफ कोच की बात कर रहा हूं. मैं एक ऐसे गुरु की बात कर रहा हूं. मैं किसी स्पिरिचुअल गुरु की बात नहीं कर रहा. मैं ऐसे गुरु की बात कर रहा हूं who is already successful, जिसने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कुछ किया है और वो आपको रास्ता दिखा सकता है. राइट? आप ऐसे इंसान को ढूंढिए. अगर इंसान नहीं ढूंढ सकते तो आपको खुद वो चीज को करना पड़ेगा. खुद अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा. देन यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी. अदरवाइज
योर लाइफ विल बी अ वेस्ट, वो वेस्ट हो जाएगी। आप आधी जिंदगी सिर्फ यही ढूंढते रह जाएंगे, यार मैं ये कर क्यों रहा हूं, राइट? आप 60 साल के हो जाएंगे और आप रिग्रेट करेंगे, यार मैंने अपनी लाइफ में किया क्या है, मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी। अगर मैं शुरुआत में ही अपना गोल डिसाइड कर लेता। I'll also tell you a short story of wood cutter, है ना? वो वुड कटर की स्टोरी क्या है? एक वुड कटर था जो अपनी एक्स को शार्पन करता था और पेड़ काटता था। तो उसके दिमाग में ना वो बहुत क्लियर था कि मैं अगर अपनी कुल्हाड़ी रखूंगा तो मेरे जो पेड़ है ना वो फटाफट कटेंगे। तो उसका गोल था कि मैं 15 से 20 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करूंगा और फिर मैं पेड़ काटने जाऊंगा, और दूसरे को पर्पस नहीं दो, उसको था कि बस मेरे को पेड़ काटने हैं। तो वो अपने पेड़ नहीं काट पाता था, राइट? वो पूरे दिन में सिर्फ 2 या 3 पेड़ काट पाता था, बट जो कुल्हाड़ी अपनी तेज करता था, अपने टाइम को स्पेंड करता था वाइजली, वो पेड़ ज्यादा काट पाता था। तो आपको कुछ भी शुरू करने से पहले अपने समय को खुद पे लगाना है और ढूंढना है कि मैं अपनी लाइफ को लेके कहां जाना चाहता हूं। So you have to find that. If you can't find that, find someone who can find that for you. Thank you. Yeah. So the next question is, since going gym is not an option now, so my question is, what exercises should I do to burn my new gained fat? Okay, very good question, and most of you will be attacked by this fat. ना बहुत लोगों का पेट मोटा हो गया होगा, साइड्स में वो लव हैंडल्स हम लोग बोलते हैं इसको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, वो लव हैंडल्स आ गए होंगे, राइट? फैट अराउंड द स्टमक, राइट? तो इसको अब कैसे हटाएं? सबसे पहले आप अपने आप को बेड से उठाएं, दैट इज द मेन थिंग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिम में ही फैट बर्न हो सकता है, यू आर रॉन्ग, राइट? सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा आपको। आप फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह की कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग पावर योगा। आप सूर्य नमस्कार करिए, आप 20 सूर्य नमस्कार से शुरू करिए, उसके बाद ज्यादा आप उसको 500 सूर्य नमस्कार तक पहुंचा सकते हैं। स्टार्ट डूइंग दैट। आप अपनी डाइट को चेक करिए कि आप जो कैलोरीज खा रहे हैं क्या वो ज्यादा तो नहीं हो रही। जब आप जिम जाते थे तब आप कैलोरीज जो खा रहे थे, क्या आज भी आप वही कैलोरीज खा रहे हैं? जब आप जिम जाते थे हमारा माइंडसेट होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्लीन ईटिंग आ जाते हैं। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें लगता है यार खाना पीना भी हम नॉर्मल शुरू कर देते हैं। तो डोंट डू दैट, यू स्टार्ट ईटिंग क्लीन अगेन, तो आपका वो फैट जो है अनवांटेड नहीं चढ़ेगा। आप कैलोरीज को चेक करिए, एक्सरसाइज, बॉडी वेट ट्रेनिंग करिए। योर बॉडी इज द बेस्ट मशीन। आप अपनी बॉडी को जैसे एक्सरसाइज जिम में होती है ना, उस तरह की एक्सरसाइज, उस तरह के रिजल्ट्स दे सकते हैं सिर्फ अपने बॉडी वेट से। I have my own online programs working, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी वेट से ही ट्रेनिंग देते हैं। I don't send people to gyms. जो लोग जिम में एक्सरसाइज करना चाहते हैं उनको मैं ऑनलाइन प्रोग्राम देता हूँ, वो ऑनलाइन जाके अपने जिम में एक्सरसाइज करते हैं, राइट? दे सी माय प्रोग्राम्स। बट जो लोग जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिम पे नहीं जा सकते, जिनके पास टाइम की कमी है, उनको हम एक्सरसाइज जो है वो घर पे ही कराते हैं। With that online program, you have that schedule in your hand, you have that diet in your hand. आपके पास regular check रहता है। If you are not self-motivated, again, I would say find someone who can motivate you to start a program for yourself. ठीक है? और बॉडी वेट ट्रेनिंग से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप कार्डियो कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप अपने घर के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। यू नो, आई ऑल्सो गिव 1-on-1 पर्सनल ट्रेनिंग्स। हम घर पे जाके 1-on-1 पर्सनल ट्रेनिंग्स देते हैं। आई हैव सम ग्रीन क्लाइंट्स इन दिल्ली हु आर माय क्लाइंट्स, ठीक है? तो वो लोग, उन लोगों के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास 10-10, 15-15 साल से हैं और वो मेरे से ही एक्सरसाइज करते हैं। उनके पास एक भी इक्विपमेंट नहीं है, हम सिर्फ बॉडी वेट से एक्सरसाइज करते हैं, दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। एक बात बताइए, जो इंसान आपके साथ 15 साल से एक्सरसाइज कर रहा है, उसको रिजल्ट आप दे रहे हैं तभी तो टिका हुआ है, अदरवाइज यू वुड हैव फाइंड अनदर ट्रेनर। वो किसी और के साथ चला जाता। आई एम जस्ट अ ट्रेनर फॉर दैट पर्सन, राइट? वो तो मिलियनेयर है, मिलियनेयर है तो वो तो ट्रेनर दूसरा भी हायर कर सकता है, मेरे से सस्ता ट्रेनर हायर कर सकता है। बट व्हाई मी? हम बॉडी वेट से एक्सरसाइज करा सकते। तो योर बॉडी इज द बेस्ट मशीन, फाइंड इट हाउ टू डू दैट, राइट? इफ यू कांट फाइंड इट योरसेल्फ, फाइंड समवन हु कैन डिजाइन इट फॉर यू, ठीक है? मेरे खुद के प्रोग्राम्स चलते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल।
Yes, thank you. Mr. Rahul, there was one question, but I think I should address this question. It says, what type of fitness trainings will be provided in college? I just want to address that. We regularly have marathon sessions. We do have yoga sessions. We do have a state-of-the-art gym facility in the campus. So students, don't worry about your fitness. You can do your exercises in the campus also. So the next question is, there's one question since. Give me a moment. Yeah. Okay. So where do you see health and wellness industry in India 5 years from now, especially after COVID crisis? Okay, very good question. I believe the person asking this question would be from very inclined to fitness industry. या भैया फिर fitness industry से ही हैं. Okay, so I would love to address this question. See, COVID-19 के दौरान fitness industry एक crisis में. All the gyms actually are shut down before the lockdown. और अभी लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका है बट फिटनेस इंडस्ट्री ओपन नहीं हुई है. सारे जिम जो है वो क्लोज डाउन है. रेस्टोरेंट्स जो हेल्थ फूड देते थे वो क्लोज डाउन है. राइट जो जिम्स के साथ लोग काम करते थे जैसे सप्लीमेंट इंडस्ट्री हो गई या एम्प्लॉयज हो गए वो क्राइसिस में है. अगर ये कोविड नहीं आया होता तो अगले 5 साल में फिटनेस इंडस्ट्री इन इंडिया वुड हैव बूम्ड. But this will actually happen now also. अभी भी ऐसा ही होगा. ये लॉकडाउन खुलने दीजिए, सब कुछ ठीक होने दीजिए. पोस्ट कोविड, ठीक है, हम लोग आजकल बहुत हॉट टॉपिक पे बात कर रहे हैं. AC एंड BC है ना, विच इज बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड. राइट, वैसे बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट ना, अभी ये बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड हो चुका है. राइट, तो आफ्टर कोविड क्या होने वाला है? फिटनेस इंडस्ट्री वापस उठ के आएगी. अगले 5 साल में इतना ज्यादा फिटनेस इंडस्ट्री बूम करने वाली है. मैं आपको उसका एक रीजन बताता हूं. दिस कोविड हैज एक्चुअली इंस्पायर्ड लॉट ऑफ पीपल टू डिजाइन सच काइंड ऑफ थिंग्स जो आने वाले समय में उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकती. एवरी एडवर्सिटी कम्स विद a unique invention. तो इसी तरह से फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर भी हर तरह के लोग हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं सिर्फ रो रहे हैं कि यार मेरा जिम बंद हो चुका है, मैं क्या करूं, कैसे होगा, सब कुछ है. बट बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे लीडर्स हैं जो इस फिटनेस इंडस्ट्री को शुरू से ड्राइव कर रहे हैं और आज भी ड्राइव कर रहे हैं. और उन्होंने ऐसी चीजें सोच ली हैं, ऐसी चीजें उनके दिमाग में आ चुकी हैं कि ये एक्सप्लोड करेंगी आने वाले 5 साल के अंदर. बहुत चेंजेस आने वाले हैं फिटनेस इंडस्ट्री में एंड दिस इज गोइंग टू बूम. अवेयरनेस बढ़ चुकी है. अवेयरनेस क्यों बढ़ चुकी है? कोविड ने लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. कोविड ने लोगों के दिमाग में डाल दी. पहले हमें बोलना पड़ता था कि हेल्दी रहो, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो, सप्लीमेंट्स खाओ, जो चीज खाने से पूरी नहीं हो रही वो बाहर से सप्लीमेंट लेके आप पूरी करो. गो टू ऑर्गेनिक सप्लीमेंटेशन, नकली चीजों से आप बचो, पेस्टिसाइड से आप दूर रहो, ऑर्गेनिक फूड पे. अब लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा. अब लोगों को ऑलरेडी ये चीज समझ में आ चुकी है. एक्सरसाइज की ताकत लोगों को समझ में आ चुकी है. अब घर में बैठ के लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं. क्यों? उनको डर है कि अगर हम इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं. और एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है. तो फिटनेस इंडस्ट्री will be booming in another 5 years. Don't worry about that. Thank you. Okay, there is one specific question. The student says, I am a hyperthyroid patient and vegetarian also. So it's very difficult for me to lose weight and gain muscle because fewer source of lean protein and low in metabolism. And he is low in metabolism. So please guide me. Okay, great. Very good question and this would help you a lot of people as well. So बहुत specific question है. This is specific to one person, but still I would address it in general. Hypothyroid जो है उसमें आपका weight gain हो जाता है, but again you have to know कि ये thyroid आपको हुआ क्यों. सबसे पहली चीज, and this is a hormonal disbalance.
राइट? ये हार्मोनल डिसबैलेंस हमारी बॉडी में क्यों होता है? दिस इज अ डिसऑर्डर, दिस इज नॉट अ डिजीज, ठीक है? एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कैन बी मैनेज्ड, दिस कैन बी ट्रीटेड, ठीक है? वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आई जस्ट टेक 1 मिनट फॉर दिस। आप देखिए एलोपैथी में जब भी कोई इस तरह का डिसऑर्डर होता है, चाहे वो ब्लड शुगर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो बीपी हो, जब थायराइड बढ़ता है तो वो गोली बढ़ा देते हैं, जब थायराइड कम होता है तो गोली कम कर देते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली ट्रीटिंग दिस, दे आर मैनेजिंग दिस सिम्टम। सिमिलरली जब आप डायबिटीज की बात करते हैं, शुगर बढ़ता है तो गोली बढ़ा देते हैं, शुगर कम होता है तो गोली कम कर देते हैं या इंसुलिन कम कर देते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली ट्रीटिंग इट। बट ये हुआ क्यों था? थायराइड हार्मोन आपका बनना क्यों बंद हुआ था या ज्यादा क्यों बन रहा था? राइट? वो इसलिए बन रहा था क्योंकि वो जो ग्लैंड है, वो जो हार्मोन है, उसको बनने के लिए बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे जो आपने अपनी डाइट में नहीं दिए, या हो सकता है वो जेनेटिक भी हो, ठीक है? बट अगर मोस्ट ऑफ द केसेस आर ड्यू टू न्यूट्रिशन गैप, या जो मिलावट या अडल्ट्रेशन हमारे खाने में हो रहा है, तो हमें अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। और अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान दें तो हमारे जो हार्मोन्स हैं जो डिसबैलेंस हो गए हैं, हम उनको मैनेज कर सकते हैं, नॉट जस्ट विद द tablet which allopathy provides you, but with good diet and supplementation, organic supplementation, आप किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को एक्चुअली में मैनेज कर सकते हो और उसको रिवर्स कर सकते हो। It takes time because this is natural process, right? हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ रिपेयरिंग कैपेबिलिटी है। दिस इज नॉट लाइक अ कार, इट डिसरप्ट्स लाइक अ कार, बट दिस कैन बी सेल्फ क्योर्ड। मैं आपको ये चीज आज फैक्ट बता रहा हूं। आप एक गाड़ी है, उसमें मान लेते हैं 5 तरह के ऑयल्स चाहिए, आप उसमें सिर्फ 3 तरह के ऑयल्स दे रहे हैं, तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में जाकर रुक जाएगी, ये खराब होगी या डिसरप्ट होगी, राइट? आपकी बॉडी के साथ भी यही है। आपके थायराइड ग्लैंड को मान लेते हैं 5 तरह के विटामिन और मिनरल्स चाहिए, और आपकी डाइट में 3 तरह के विटामिन मिनरल्स गायब हैं, सिर्फ 2 ही मिल पा रहे हैं, तो आपका जो ग्लैंड है ना, वो बोलेगा बॉस आप तो मुझे वो चीज दे ही नहीं रहे जिससे मैं चलता हूं, तो मैं वो बंद कर देता हूं या मैं उसको डिसेबल कर देता हूं। तो वह आपको जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है, राइट? बट जब आपने वो सारी की सारी चीजें उसको देनी शुरू कर दी, आपने अपनी डाइट को चेक किया, सप्लीमेंटेशन पे आप आ गए, राइट? तो उस ग्लैंड को वो सारी चीजें मिलेंगी और एक स्पार्क मिलेगा उसको वापस स्टार्ट होने का। जब वो स्पार्क मिलेगा तो वो ग्लैंड वापस एक्टिवेट होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ब्राइट है। और अगर ऐसा होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके थायराइड से, ठीक है? तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो आप अपने वेट को मैनेज कर पाएंगे। So I hope I was able to answer you, but in detail, if you want to go about this, you can personally email me. Thank you. Okay, so there's a question from an alumni. I hope because the name is very familiar, so I hope it's I think this person is an alumni. The question is: at times, due to excessive pressure from work, an individual tend to get disturbed, which affects health conditions as well. How can we balance the stress and pressure from work and our personal life? How do we stay mentally strong in keeping a balance in both work life and personal life? Absolutely. If you don't mind, can I know the name of the alumni? So name of the person is Vishwajit Datta. Okay, I don't know him. I thought So Mridul sir has actually, he shared the feedback. He said, you people are doing amazing. So he has already given his feedback. So, but Vishwajit has this query. Yeah. Okay, great. I would definitely address this. Now, Vishwajit, keeping life balance is very important. I have addressed his life balance, and life states all the parameters of life, right? That is health and mind, your business, your work, everything. So that has to be balanced. और उसके लिए मैंने आपको अभी एक रूल जो है वो बताया था, एंड दैट इज कॉल्ड 60-10 का रूल। और ये 60-10 रूल क्या है, और फिर मैंने आपको डेली रिचुअल्स बताए थे। नाउ इफ यू ओनली फोकस ऑन वर्क 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 वर्क, यू विल एक्चुअली बी प्रेशराइज्ड, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप सारी चीजों को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जब आप लंबे समय तक किसी चीज को खींच के अपने सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं, एंड यू डोंट वर्क ऑन योरसेल्फ, वही अभी कुल्हाड़ी वाली बात भी हमने करी थी, आप अपनी एक्स को शार्पन मत करिए,
और आप पेड़ को काटते रहिए बिना शार्पन्ड एक्स से, तो आप ज्यादा पेड़ नहीं काट पाएंगे. यू विल एक्चुअली ड्रेन योर एनर्जी. आप अपनी एनर्जी को खत्म कर देंगे, आप सारी चीजों को ड्रेन कर देंगे. आप अपनी सोशल लाइफ को रुइन कर देंगे, आप अपनी फैमिली लाइफ को रुइन कर देंगे, आप अपनी हेल्थ को खराब कर चुके होंगे, आपके सर के बाल जो हैं वो जल्दी व्हाइट हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लग जाएगा स्ट्रेस के कारण. ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर स्ट्रेस और वर्क प्रेशर की वजह से हो रही हैं, और खासकर कॉर्पोरेट्स में हो रही है. राइट? अब इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? गेट अप अर्ली एन आवर इन द मॉर्निंग. 1 घंटा जल्दी उठ जाइए. जब भी उठते हैं आप, अगर 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठ जाइए, अगर 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठ जाइए. 1 घंटा जल्दी उठ जाइए एंड स्पेंड दैट टाइम फॉर योरसेल्फ. 1 घंटा आप अपने लिए समय निकालिए, जिसमें आप अपनी हेल्थ पे काम करिए, एक्सरसाइज पे काम करिए. जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके अंदर से वो हार्मोन्स जो है ना, जो लाइवली हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स जो हैं वो अपलिफ्ट होंगे. जब वो अपलिफ्ट होंगे तो आपका पूरा दिन जो है वो बहुत अमेजिंग निकलेगा. उसके साथ साथ फिर आप उसी 1 घंटे के अंदर अपने अंदर जाएंगे. Find your goal, work on your mind, read a good book, listen to positive podcast, listen to positive audio, work that 1 hour. I say that a miracle hour. ठीक है, वो 1 घंटा जो है ना वो मैजिकल आवर होता है. वो 1 घंटा अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया तो आप अपने पूरे दिन को मैनेज कर पाएंगे. सेकंड जो रूल बोलता है, टेक ब्रेक्स, टेक वेकेशंस. अब वो वेकेशंस जो हैं वो डेली बेसिस पे भी हो सकती हैं. डेली बेसिस पे मतलब काम किया, 2 या 3 घंटे काम किया, उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, अपनी एक्स को शार्पन कीजिए, उसको इतना शार्प कीजिए कि आप अगले कुछ घंटे जो है वो काम कर पाए. राइट? एंड यू वॉन्ट बिलीव, हमारे इंडिया में तो जो है वो एक्सप्लॉयटेशन होती है काम को लेके. आपका जाने का समय होता है, आने का समय नहीं होता. बट जो बाहर है फॉरेन कंट्रीज में, वहां पे 40 आवर्स यू वर्क. ज्यादातर हम 40 घंटे काम करते हैं. हमारे इंडियन होटल इंडस्ट्री में मैंने काम किया हुआ है, आई हैव वर्कड फॉर 72 आवर्स, बिना रुके 72 घंटे काम किया है. ठीक है, और आपको चिल्लड़ मिलते हैं उसके लिए. राइट? बट यहाँ पे जो आपका ओवरसीज है, वहां पे आपको 40 आवर्स काम करना है, 40 आवर्स आपको काम करना पड़ता है. बट दैट इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल. बट एक कंट्री है, कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था एक दूसरे लाइव वीडियो में, दैट इज नॉर्वे. वहां पे पूरे हफ्ते में आप सिर्फ 27 घंटे अपने एम्प्लॉइज से काम कराते हैं. 27 आवर्स, दैट्स इट. उस 27 घंटे में काम करते करते बाकी के आवर्स वो क्या करते हैं? दे स्पेंड टाइम विद फैमिली, दे स्पेंड टाइम एंजॉयिंग, दे स्पेंड टाइम ईटिंग गुड फूड, दे स्पेंड टाइम एक्सरसाइजिंग, दे स्पेंड टाइम rejuvenating, they spend time giving to their health. उससे क्या होता है? उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस है टाइम स्पेंड नहीं करना, हमारा मेन पर्पस है एंड रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी. राइट? तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ही तो मेन पर्पस है. उसके लिए आपको कम समय में ज्यादा काम करना है, ना कि ज्यादा कम समय में आप कम काम करें. राइट? तो अपनी एक्स को शार्पन करिए एंड लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा. And that country, Norway, is the second most productive country. So this is actually researched. आप समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, take a break, play with your kid, अपने आप से बात करिए, अपने गोल को सेट करिए, मेडिटेट करिए 10-15 मिनट के लिए, then again start working. So that is how you keep balance. That is how you actually keep motivated. That is how you bounce back. Thank you. Thank you so much, Mr. Rahul. It was amazing session, and I can see there are a lot of more questions, and I'm sure students will get connected to you on your personal wall. I've jotted down a few points. I just want to narrate those points. You said keep yourself away from distractions. You said stay away from excuses. You said if you want to see the change in the world, be the change. You also said don't surrender. So with that note, I'm sure students must have got motivation to have a healthy body and healthy mind. We are done for the today's session. Long live IIEBM and Jai Hind. Thank you so much, Mr. Rahul.
Welcome and pleasure addressing you all. Thank you. Thanks a lot.